हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार, सलाम। मैं दीपक चौधरी स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर एंड दिस इज एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। वेलकम टू ऑल। आज जो बात कर रहा हूं पिछले 3 दिनों से हम नंबर सीरीज को कोरिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नंबर सीरीज को डिटेल में जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि संख्या बढ़ती हैं तो क्या होता है। व्हेन द नंबर इज इंक्रीज्ड व्हाट विल यू डू एग्जैक्टली इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन केस ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू the main theme is what? Square and cubes on the behalf of increasing. For example, what does it mean? The meaning is what? Square and cubes. Square and cubes. So I already told in the yesterday's class कि please remember square and cubes. Square up to 50 or 30 you first of all remember, and cubes up to 15 or 10. मतलब साफ है कि आपको याद करना पड़ेगा इन सब चीजों को, जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को देख सकते हैं easily. You can find out, for example, on the behalf of square and cubes. Square means everybody knows what वर्ग. It's so simple. So understand the nature of the questions, why we say like that. For example, like 4, 16. Next is 36, 80, 64. Next one is 100. So everybody knows about all these numbers are perfect square, isn't it? Everybody knows all these numbers are perfect square because 100 is what? It's the square of 10, and 64 is what? Square of 8, and 36 is what? Square of 6. 4 is square, and this one is 2 square. So the gap of all these numbers are even consecutive square number, even number. Like 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10. Then definitely next will be 12 square. Answer will be 144. First of all, analyze all these numbers. All these numbers are perfect square. Excellent. All these numbers are perfect square. So you can find it the next one simple, in a simple way. 12 square, square of 2, square of 4, square of 6, 8 square, 10 square. आप बोल सकते हैं 2 4 2 2 का गैप है तो 2 4 6 8 10 नेक्स्ट हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 होता है। अब सवाल ये है, the most important question is what? If you relate this question easily, then why not this one? इसको हम क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब के आधार पे कर सकते हैं? आप गैप भी निकाल सकते हैं। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, सपोज द गैप बिटवीन 4 and 16 is what? The gap between two numbers is like 12. Simple. The gap is what? 20, and the next gap is what? 28. Look at the number. 4 plus 12 16, and 16 plus 20 36. 36 plus 28 64, and next is 64 plus 36 is what? 100. So the gap is what? Plus 8 plus 8 plus 8. The next definitely it should be plus 8. The next number is 44, and 100 plus 44, 144 will be the answer. Without any doubt you can answer it. So if you do not detect the above square numbers, if you do not, but it's easy one. अगर इसका पता नहीं लगा पाया आपने तो आप नीचे से भी गैप लेके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल जाता है बिकॉज ऑल दिस नंबर्स एवरीबडी नोज अबाउट कि नंबर क्या कहता है। ओके, सो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो डिटेक्ट कर लो या तो गैप पता कर लो। सम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन नॉट फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गैप, सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन को आप गैप से फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट ज्यादातर प्रश्न आपको गैप से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए कुछ और नंबर्स मैं आपको रिलेट कर सकता हूं, सम ऑफ द नंबर्स। एंड स्क्वायर एंड क्यूब्स इट्स आल्सो नोन एज इंक्रीजिंग। यहां संख्या बढ़ भी रही है, बढ़ने का मतलब साफ है आप प्लस करते हो। मैंने कल भी जिक्र करा था, प्लस आप करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, एंड विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन आंसर इट the proper questions answer. So the next will be like 3, 15, 63, 63. This one is 35. This one will be 35. 35, and next one is 63, 99. Next, what will be the next number? Look, because if you compare both the series from top and bottom, both the series, then you can easily find out square minus 1. So आपको ये आसान लगता है, बट ये a bit tough compared to the next, the above series. आपको थोड़ा सा टफ दिखेगा अगर above series का आप कंपैरिजन करते हैं तो, क्योंकि first of all you know about 99 is what? Obviously everybody knows about 99 is known as 10 square minus 1. 63 is known as 8 square minus 1. मतलब अगर सीरीज में अगर आपको ये ना दिया होता, बाय द वे ऊपर वाले सीरीज गिवन नहीं होते, डायरेक्ट ये सीरीज दिया होता, क्या ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि आप ऊपर रिस्पेक्ट मान के बना सकते हैं नीचे वाला, बट डायरेक्टली दिया होता तो थोड़ा टफ लगता है। इसे हम कह सकते हैं 6 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज नॉन एज 2 स्क्वायर माइनस 1। सो फाइंड आउट, आप डायरेक्ट जा सकते हैं तो 2 4 6 8 10, नेक्स्ट शुड बी
12 square minus 1, and 12 square minus 1 is what? 143. So either you can also find out the gap between two numbers. The gap between two numbers is what? 12, and 3 plus 12 15, and 15 plus 20 is 35, and 35 plus 20 is 63, plus 12 plus 8 20, 20 plus 8 28, and 28 plus 8 is what? 36. 28 plus 8 is what? 36, and 63 plus 36 99. Next will be 99 plus 44 143 will be the answer. Is that clear? Without any doubt you can answer it. So first of all, understand the each and every nature of the question, segment of the question को आप समझिए, क्वेश्चन के नंबर को बाइफर्केट करिए, उसके बाद सोचकर आप बना सकते हैं. तो मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर एंड क्यूब्स. सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल गिव यू एंड फाइंड आउट द आंसर. सो द नेक्स्ट विल बी व्हाट? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद, सबको नमस्कार, सलाम. इसलिए मैं कुछ सवाल दूंगा रिलेटेड टू स्क्वायर एंड क्यूब्स. आपको डिटेक्ट करना है, और संख्या यहाँ पे बढ़ेंगी दोस्त, संख्या बढ़ेंगी, ज्यादातर संख्या, और संख्या बढ़ती है तो आप जानते हैं क्या होता है. द पॉसिबिलिटीज इज व्हाट? प्लस इनटू कम एडिशन, इनटू कम सब्ट्रैक्शन, इनटू कम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एंड गैप. And your gap might be square and cubes in the form of square and cubes. So first of all, do the next one, like 2, 12, 36, 80, 150. Next will be what? Please tell me. Can you explain it? What will be the answer? With the help of logic, please find out directly. I am telling you directly. Please find out. Please find out directly with the help of square and cubes. If you do not detect the direct square and cubes, then you can find out the gap between two numbers among the numbers. Please find out. आप गैप ले सकते हैं, आप डायरेक्टली नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स. लाइक व्हाट डज इट मीन? व्हाई डिड आई से लाइक दैट? फॉर एग्जांपल, कैन यू कोरिलेट द नंबर 210? Is 210 nearer to any square and cubes? Is 210 nearer to any square and cubes? Obviously 210 किसी स्क्वायर एंड क्यूब्स के नियर है क्या? हाँ है. 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 स्क्वायर प्लस 14, एंड दिस वन इज 15 स्क्वायर माइनस 15, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज 6 क्यूब माइनस 6 भी कह सकते हैं आप. सो प्लीज डिटेक्ट द नंबर. ईच एंड एवरी नंबर इन जनरल आर नियरर टू स्क्वायर एंड क्यूब्स. सो प्लीज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर. क्या हम 80 को बोल सकते हैं किसके नजदीक है? हाँ, बोल सकते हैं आप. कैन यू रिप्रेजेंट 80 इन द फॉर्म ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 1? Obviously you can, and it is also known as 4 cube plus 4 square, isn't it? आप 80 को दो रूपों में निरूपित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स. 80 is known as 9 square minus 1, and 80 is also known as 4 cube plus 4 square. Okay, the next one, 36, directly you can say 6 square, perfect square of 6, and you can also represent a 3 cube plus 3 square. And 150 is what? 5 cube plus 5 square. And 150 is also known as 12 square plus 6. Is there any problem? Please look at the questions. Look at the questions format. क्या आप सारे नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं? सो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि नंबर को आप कैसे डिटेक्ट कर पाए. बाकी आप गैप तो ले ही सकते हैं, इसलिए बेफिक्र रहिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए, क्योंकि संख्या को पहचानना जरूरी है. दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड इन यस्टरडेज क्लास एंड द डे बिफोर यस्टरडेज आल्सो कि प्लीज रिमेंबर ऑल द स्क्वायर एंड क्यूब्स. प्लीज मग अप, डायरेक्टली याद करना है, जुबान पे रहनी चाहिए बातें, और आसानी से आप कोरिलेट कर सकते हैं किसी भी दी गई संख्या को आसानी से. इसलिए मैं आपको हर तरह की बातें बता चुका हूं, और धीरे धीरे जो भी बातें जरूरी है वो आपको बताऊंगा. इसलिए 12:30 में आपकी जो क्लास होती है ये नियमित तो चलेंगी, और उसके अलावा आपकी जो ऐप पे क्लास होती है वो भी चलेंगी. इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा नंबर को डिटेक्ट कर पाए. फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसे क्या कर सकते हैं? 4 स्क्वायर माइनस, हम क्या बोल सकते हैं? 4 स्क्वायर माइनस 4, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज टू द पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर, and it's also known as 1 cube plus 1 square. So please look at the format of the question. 1 cube plus 1 square, 2 cube plus 2 square, 3 cube plus 3 square, 4 cube plus 4 square, 5 cube plus 5 square. Next should be 6 cube plus 6 square. 6 cube plus 6 square. So 6 cube is what? 216, and 216 plus 36 is what? So answer will be what? 252 will be the answer. Without any doubt you can answer it. So इन केस ऑफ स्क्वायर दिस इज नॉट पॉसिबल. ये फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है. ऊपर वाला फॉर्मेट वैलिड है, तो आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं कि आंसर 252 आएगा. और इधर यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द गैप बिटवीन टू नंबर्स अमंग द नंबर्स. कैन यू फाइंड आउट? डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट, एंड फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ द गैप्स. आप गैप से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी डायरेक्ट आपको पता है तो गैप पे क्यों जाए? सवाल ये है, बहुत सिंपल सा सवाल है. अगर डायरेक्ट पता है तो गैप पे क्यों जाए? कहने का मतलब आपको डायरेक्ट करना आसान है, और प्रश्न पूछने वाला आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता है. ओके, नेक्स्ट
सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स प्लीज फाइंड आउट। आप गैप भी ले सकते हैं, गैप में आपको चुनाव मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल 1 5 1 5 14 39 88, next will be what, these are the options. Why so please look at the options properly, and with the help of option please find out the answer. 169 168 158 209. So please find out what will be the answer with the help of options. With the help of options what will be the answer, please do. क्या होगा आंसर? विवेक विनय पांडे, ओके विवेक विनय पांडे आपकी क्लास होगी। अरेंजमेंट वगैरह की चीज़ें चल रही है थोड़ी सी, और इंगेजमेंट ज़्यादा होने की वजह से अभी प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं हो पाए, लेकिन आपकी क्लास तो चलेंगे, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप। प्लीज फाइंड आउट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। अगर आप इस प्रश्न को देखें तो आप गैप ले सकते हैं, गैप लेने या डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं तो गैप, पर गैप में भी आपको कभी कभी स्क्वायर एंड क्यूब्स मिल सकता है। सो प्लीज फाइंड आउट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। गौर से देखिए आप नंबर को गौर से देखने के बाद आपको क्या पता चलेगा, इट्स अ 49 एंड दिस वन इज व्हाट 25 एंड दिस वन इज व्हाट 9 एंड ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 4। क्या आप 2 का स्क्वायर जानते हैं, 2 का स्क्वायर एंड दिस वन इज 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड नेक्स्ट was 7 स्क्वायर, नेक्स्ट शुड बी डेफिनेटली 81। क्या होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, डेफिनेटली नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या 9 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 एंड 88 प्लस 121 इज व्हाट 209। क्यों होगा 11 स्क्वायर 9 क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट द कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑफ द प्राइम कंसेक्यूटिव नंबर, ये जो लगातार अभाज्य संख्या है, इट्स अ कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, लगातार अभाज्य संख्या का वर्गों का योग है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर। एवरीबॉडी नोज प्राइम नंबर इज व्हाट विच इज परफेक्ट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जिसके दो डिविजर हो, एक स्वयं और एक और स्वयं से विभाजित। सो द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड प्राइम नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर, 2 is an even number and it's also prime number। 2 का स्क्वायर 3 का 5 का 7 का और 11 का स्क्वायर, 88 plus 121 is what 209 will be the answer। Without any doubt you can answer it with the help of the options 209। अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं 81 को रखते हैं यहाँ पे तो 88 प्लस 81 आपको 169 मिलता है, और ऑप्शन में 169 भी दिया रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ऐसा कुछ तैयार किया जाता है कि आप आंसर टिक कर दें, परंतु आंसर इसका क्या होगा, द प्रॉपर आंसर विल बी व्हाट 209 इज द प्रॉपर आंसर। Is that clear? So, आपकी दोस्त यूपीएसआई की क्लास, जैसा कि आपको सूचित किया हो गया, ऐप पे प्रॉपर यूपीएसआई की क्लास चल रही है आपकी। सो द एग्जाम्पुर ऑफिशियल ऐप 2 बजे शुरू होती है, तो इसलिए सारी चीज़ें पीडीएफ्स असाइनमेंट्स जो मित्र मेरे ख्याल से ऐप पे अवेलेबल है उनको मालूम होगा, और इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐप पे ऑफिशियल ऐप पे डाउनलोड करिए। प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीटली कंप्लीट होगा, इतना जरूर मैं कह सकता हूं, कंप्लीटली कंप्लीट होगा पूर्णतः। नेक्स्ट प्लीज फाइंड आउट 0 7 26 63 124। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। ऐसे नंबर को जानते हैं, प्लीज डिटेक्ट ऑल दिस नंबर्स, ऑल दिस नंबर्स आर रिलेटेड टू स्क्वायर एंड क्यूब्स। प्लीज फाइंड आउट एंड जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द आंसर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, प्लीज ऑल दिस नंबर, सबसे पहले सरसरी निगाहों से आप सारे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट को आपको देखना चाहिए, और यहाँ पे जो दिए गए प्रश्न है उसमें आप एक बार सरसरी निगाहों से देख जाइए क्या क्या प्रश्न में जो संख्या दी गई हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं, क्या वो स्क्वायर एंड क्यूब्स के नियर है। अगर नहीं है तो गैप को अंदाजा लगाइए, कहीं गैप है क्या, तो अगर वो भी नहीं है तो आप कुछ और कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 7 3 जा 21 करके बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि नंबर को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज डिटेक्ट ऑल दिस नंबर, ऑल दिस नंबर्स आर रिलेटेड टू स्क्वायर एंड क्यूब्स। इफ इट इज देन फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स। इफ इट इज नॉट देन फाइंड आउट द गैप। इफ इट इज नॉट, अगर गैप भी नहीं है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखिए, लाइक मल्टीप्लिकेशन कम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कम सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। ओके, सो प्लीज फाइंड आउट द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स। जल्दी बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। 215 आपने बोला दोस्त, 215 लुक 215 होगा, लाइक इसे कह सकते हैं 5 क्यूब -1 एंड दिस वन इज 4 क्यूब -1 एंड 3 क्यूब -1
2 cube minus 1, 1 cube minus 1, 1 cube minus 1, 2 cube minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, and next is what? 6 cube minus 1, 6 cube is what? 216, and 216 minus 1 is what? 215 will be the answer. Is that clear? 215 इसका उत्तर हो जाएगा दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग। आपकी क्लैट की क्लास चलेगी, स्वरा त्रिपाठी, विवेक विनय पांडे, ऑल द पर्सन्स हु आर वाचिंग, प्लीज आपकी क्लैट की प्रॉपर उसके लिए प्लान किया जा रहा है और शेड्यूलिंग किया जा रहा है। बिजी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग चीजें, बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो गई है। इसके लिए जाहिर सी बात है, जब भी कहने का मतलब जल्द ही करके इसे प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। इतनी बातें हैं फिलहाल, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो नेक्स्ट आगे चलता हूं, तो प्लीज बताइए कि क्या होगी संख्या और किस आधार पे आप नंबर को पहचान सकते हैं। प्लीज फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल 2, 10, 29, next is 66, and next is 127. Please tell me, can you identify all these numbers? Can you identify all these numbers? If you can, just find out what will be the answer in the place of question mark. क्या आप सारी संख्याओं को पहचान सकते हैं? अगर आप सारी संख्याओं को पहचान सकते हैं, दिए गए प्रश्न का आप उत्तर बता सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। सो प्लीज टेल मी। ग्रेजुएशन दोस्त मेरे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो प्लीज फाइंड आउट व्हाट विल बी द आंसर। 2, 10, 29, 66, 126, 7, नेक्स्ट क्या होगा प्लीज। 2117, नो 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 नो, 2117 कैसे होगा प्लीज बताइए। Please, please, please look at the questions format. 29 is also known as 5 square plus 4, and 29 is also known as 3 cube plus 2. Can we represent 29 in the form of 3 cube plus 2 and 5 square plus 4? Isn't it? कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा। 66 is known as 8 square plus 2, and 66 is also known as 4 cube plus 2. So please, I already told, remember all the square and cubes। मगर प्लीज सबको रट जाइए ना लॉजिकल वे, लाइक ना जुबान पे होनी चाहिए, पेट में नहीं, जुबान पे, कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। इस प्रकार से आपको रटना है लॉजिकल वे में, क्योंकि उसका प्रयोग आप कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक के। अगर आप ट्रिक्स के थ्रू रटते हैं तो फिर भी वक्त लगेगा। हमें वक्त नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट चाहिए। डायरेक्टली आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे आपसे नॉर्मली कोई पूछता है कि बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप यूं बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं 6 का स्क्वायर 36। क्यों? क्योंकि आपको याद है, और जाहिर सी बात है जो चीजें याद है तो उसके लिए आप एफर्ट नहीं लगाते, वो बाय डिफॉल्ट याद है। इसीलिए ऐसी चीजें याद करिए जो बाय डिफॉल्ट हो, उसके लिए कोई दिमागी प्रेशर ना हो, आपको सोचने की आवश्यकता ना पड़े, आप डायरेक्ट जुबान से यूं निकाल दें, हाँ ऐसा है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो कुछ जो चीजें याद होती हैं उसको बोलते हैं आत्मसात कर लेना। आप कभी भी किसी वक्त नहीं भूल सकते हैं, तो याद करने का मतलब यही है। अगर आपको प्रॉपर याद है, इसका मतलब आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, एफर्ट नहीं लगाएंगे, आप बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं। ओके, सो 3 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब प्लस 2, इसका मतलब साफ है, ये फॉर्मेट जो है क्यूब प्लस 2 में है। क्यूब प्लस 2, क्यूब प्लस 2, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज क्यूब प्लस 2। इसे हम कह सकते हैं क्यूब प्लस 2, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज 1 क्यूब प्लस 2। सो द नेक्स्ट विल बी 1 2 3 4 5 क्यूब प्लस 2, एंड दिस इज नोन एज डेफिनेटली 6 क्यूब प्लस 2, एंड 6 क्यूब इज व्हाट 216 प्लस 2, 218 विल बी द आंसर। 218 इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, दिए गए विकल्प के अनुसार आप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? So definitely you can find out with the help of the logic. It's a simple question, but please remember all the square and cubes. Please, I request you to all, please remember all the square and cubes with the respective numbers. So next number, please identify what the number says, what these numbers say. Basically the number is in order. ये सारी संख्या आपको एक ऑर्डर में दिया जाता है बढ़ते हुए क्रम में। या तो संख्या को डायरेक्ट पहचानो, या तो गैप लो, या तो मल्टीप्लाई करके बता दीजिए आप। ओके, लाइक for example 0 4 1 second 0 4, next is what 0 4 18, remember next is 18, एक second, next second 18, it's 18, next is 48, next one is 100. So please tell me what will be the number in place of question mark। 0 4 18 48 100, what will be the answer? दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्त? प्लीज टेल मी। आप गैप भी ले सकते हैं एंड डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर को डायरेक्टली। यू कैन आइडेंटिफाई नंबर विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स डायरेक्टली। कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू नो अबाउट 100? कैन यू नो अबाउट 100? 100 is what?
100 is directly, can you represent 100 in the form of square and cubes? 100 is directly you can say 10 square, but it's a 7 square, it's a 8 square, 6 square. क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं है directly. So please, 100 is known as 10 square, and you can easily find out. It's also known as 5 cube minus 5 square. So that's why I already told, I'm just telling you, remember square and cubes. किसी भी संख्या को आप वर्ग और घन के नजदीक रख सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली याद है तो. लाइक अगर आपको याद है तो नंबर को रखने में कोई दो राय नहीं है. 450 इज नॉन एज 21 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इजंट इट? क्योंकि आपको 450 याद नहीं है, डू नॉट नो अबाउट 450, बट यू नो ऑब्वियसली अबाउट 21, and 21 स्क्वायर इज व्हाट? 441, and 450 इज नियरर टू 441. दैट्स व्हाई 441 को क्या चाहिए 450 करने के लिए? ओनली 3 का स्क्वायर, and 3 का स्क्वायर इज व्हाट? 9. 441 plus 9 is what? 450 will be the answer. Is there any problem? Next, so you can find out the answer with the help of the square and cubes. This is the last one. Can you represent 48 in the form of 4 cube minus 4 square? And 48 is also known as 7 square minus 1. So please look at the numbers format, look at the square and cubes format, which one is applicable, which one is favorable, which one is feasible. The above one is feasible. So with the help of cube minus square, you can find out 4 cube minus 4 square. Next one is 3 cube minus 3 square, and 2 cube minus 2 square. And this one is 1 cube minus 1 square. Indirectly you can say 18 is also known as 4 square plus 2. But which one is feasible, which one is easier, which one is a correlated form, which one is a sequential form? कौन सा एक क्रम में है? तो ऊपर वाला क्रम में है. 1 cube minus 1 square, 2 cube minus 2 square, 3 cube minus 3 square, 4 cube minus 4 square, 5 cube minus 5 square. Next should be 6 cube minus 6 square, and 6 cube is what? Everybody knows about 6 cube is what? 6 cube is 216, and 216 minus 36 is what exactly? 120, 180 will be the answer. So if you check out the numbers with the help of the square and cubes at the bottom one, so it's not related to the perfect format. So answer will be what? 180 will be the answer. You can easily find out the gap, and you may answer find out with the help of the gap. So that's it for today. हम लोग मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.